Okay student, due to some technical issue our system was shut down. Now we are again resuming our lecture. So see here, a man go to certain distance with speed x km per hour. प्रवीण जी ठीक है सब? While and comes back with a speed y km per hour. It means that here the distance is same. मतलब अपना ट्री वाला फॉर्मूला नहीं बोलते हैं, ट्री वाला अप्रोच, फॉर्मूला थोड़ा डिग्रेडिंग लगता है नहीं, तो अपना ट्री वाला अप्रोच काम करेगा. ओके, सो एक्स वाई सेम क्या था, x किलोमीटर से वो जा रहा है, y किलोमीटर पर आवर से वो रिटर्न हो रहा है. डिस्टेंस हमने ले लिया एक्स वाई एलसीएम लेके, क्योंकि डिस्टेंस तो वी आर फ्री टू चूज एनीथिंग बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. सो बेटर इट वी विल चूज सच क्वांटिटी विच गेट इजिली डिविजिबल बाय बोथ ऑफ द गिवन क्वांटिटीज. So for that we are going to take the LCM. So LCM of x and y is xy. This is the distance. Now since speed is this, distance is this, then time will be y. Here the speed is y, distance is xy, so the time will be x. Now what is said in the question that if it takes t hour more to come back, it means that incoming time is more. So x minus y is equal to t. So 1 is equal to t upon x minus y. So what is the distance? xy. So xy is equal to t upon x minus y into xy. That's it. Or shortcut, s1 into s2 upon s1 minus s2 into difference between time. Leave this, कोई मतलब नहीं है, ठीक है. Now see, we are going to approach this question by our tree method. A man cover a certain distance from house to office. If he travel at a rate of 30 km per hour, then he is late by 10 minutes. But if he travels at a rate of 40 km per hour, then he reaches his office 5 minutes earlier. Find the distance from office, home to office. Single distance has been asked. So see here, what is the speed? 30 kilometer, and another speed is 40 kilometer. So what will be the LCM of this? That will be the distance. So LCM of this will be 120. Okay. Now try to divide it. How much you will get? 4 unit will be the time, and here how much unit will be the time? 3. Okay. Now see one thing, it is in kilometer per hour, it is also in kilometer per hour. So this will be in kilometer, so this will be in hour, for understanding purpose. Ab now see what is given in the question, that if he travel at 30 km per hour, then he is late by 10 minutes. It means that suppose the reporting time is 9 a.m. Suppose the reporting time is 9 a.m. then he is reaching office at 9:10. But if he travel at a rate of 40 km, अब सी इस क्वेश्चन में क्या हुआ, रिटर्निंग की बात नहीं की है, इसमें दो अलग अलग दिन की बात की है. आज वो गया 30 किलोमीटर पर आवर से और कल वो गया 40 किलोमीटर पर आवर से. डिफरेंस आया ना, रिटर्न नहीं हो रहा है, लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर है क्या, डिस्टेंस सेम होना चाहिए. वो है, आज भी वो ऑफिस गया, कल भी वो ऑफिस गया. सी दिस इज द थिंग व्हाई आई मतलब इनकरेज यू पीपल टू फोकस ऑन द कंसेप्ट. अब अगर कोई लड़का रिटर्निंग वाला क्वेश्चन पढ़ा होता तो शायद वो यहाँ कंफ्यूज हो जाता, लेकिन अपने को क्या है, अपने को डिस्टेंस सेम चाहिए था, वो मिल गया. आज वो जाए, अब या तो ये हो सकता है कि वो घर से ऑफिस गया एंड देन ही रिटर्न बैक फ्रॉम ऑफिस टू होम. इधर वो एक केस हो, या आज वो घर से ऑफिस गया फिर वो कल भी घर से ऑफिस गया. तो दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, अपना फॉर्मूला तो लगेगा, अपना अप्रोच लगेगा. सो सी हियर, व्हेन ही इज ट्रेवलिंग विद स्पीड 30 km per hour, then he is late by 10 minutes. Now suppose
the reporting time is 9 a.m. then it means he is reaching office at 9:10. Again when he increased his speed to 40 km/h then he reaches his office 15 minutes earlier. It means that he is reaching office at so what is the difference in the time due to change in the speed? 15 minutes. समझ में आया कि नहीं? पक्का? इसका मतलब वो पहले लेट हो रहा था, अब टाइम से पहले बिफोर है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उसको 4 घंटे लग रहे थे, अब उसको 3 घंटे लग रहे हैं। तो अपना डिफरेंस कितना आया टाइम का? 1 मिनट। ठीक है? सो क्या हुआ अपना 4 - 3 दैट इज it is our one difference and our one difference is 15 minutes. ठीक है? और we can say that 15/60 hour because everything is in standard quantity, so we will also convert it into hour. It means that hour 1 is equal to questions 1/4 hour. पक्का? So our distance is 1/20. So questions distance will be 1/20 into 1/4, 30 किलोमीटर। अपना 21 है ना, 120 है ना? स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। तो 120 है, 120 डिवाइडेड बाई 4। नहीं आया पल्लवी? आ गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखो, या तो डिफरेंस इन टाइम बोल दे या तो टोटल टाइम बोल दे। अगर हमारा ये वाला कंसेप्ट क्लियर है तो वो कुछ भी बोले हम कर लेंगे। क्लियर? ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द स्टूडेंट आई हैव टू चेंज माई PDF। सारे क्वेश्चन आई हैव सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली, लेकिन उन्हें बस गलती से मैंने फॉर्मूला बता दिया था। सो दे स्टार्ट सेइंग सर नो, सॉल्व ऑल द क्वेश्चन डायरेक्टली बाय द फॉर्मूला। तो फिर मैंने एडिट किया, एक एक पिक को हटाया। अब मैं वापस से लगाऊंगा इस वापस से। आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दियो। कारण शायद ये है कि बिकॉज यू पीपल हैव रेड परसेंटेज अर्लियर, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इस मेथड के रिगार्डिंग आ गई है। अदरवाइज मेरा सीक्वेंस क्या था पढ़ाने का? डायरेक्टली आई स्टार्ट फ्रॉम टाइम एंड वर्क, देन बोट एंड स्ट्रीम, एंड देन टाइम एंड डिस्टेंस। सो थोड़ा सा रेजिस्टेंस students develop regarding this method, but since we have completed percentage, so I think that now you people are comfortable. So आपको ये method, हाँ एग्जैक्टली ना, दैट्स व्हाई। हाँ क्या चीज़? हाँ हमारा 1 यूनिट क्वेश्चन के 1/4 के बराबर था। अब हमारा डिस्टेंस कितना है? 120। तो जब हम इधर भी 120 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 120 से मल्टीप्लाई कर दिए, सो हमारा 120 क्वेश्चन के 30 के बराबर हुआ। समझ में आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। A man cover a certain distance by 10 km/h and becomes 15 minutes late. But if he travel the same distance, अब सी इसमें ना तो रिटर्निंग का कंसेप्ट आया कि वो जा रहा है एंड देन ही इज रिटर्निंग, ना ये कंसेप्ट आया इसमें कि वो आज ऑफिस गया फिर कल जा रहा है। अब उसने क्लियर कट इस क्वेश्चन में बोल दिया है, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस by 10 km/h and becomes 15 minutes late, but if he travel the same distance with 12 km/h then he becomes 5 minutes late. So find the distance.
अब देखिए जो बच्चे फॉर्मूला रट के जाते हैं ना, वो फिर वही टर्म खोजते हैं कि रिटर्न वाला भी नहीं है, ये तो अगले दिन वाला भी नहीं है, तो इसमें पता नहीं क्या लगेगा। लेकिन हम लोग को उन सब चीज़ों की चिंता नहीं है, ठीक है। सो सी हियर, इसमें हम लोग करते हैं, पहले क्या स्पीड थी 10 किलोमीटर, फिर उसने स्पीड क्या कर दी 12। नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम, सो एलसीएम ऑफ 10 and 12 60, okay, so LCM will be 60। अच्छा, you people are comfortable in taking the LCM ना? LCM लेना आ रहा? हाँ, then do it। so हाँ, LCM HCF चैप्टर में आपको अभी ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ना LCM। I think that you people are have seen the question like this, there is a number which is divided by 3, 4 and 5 then leaves the same remainder, और find the maximum 6 digit number। हाँ, क्या बताइए, ये सब आपको बताएंगे कैलेंडर में, वो फिर क्वालिटेटिव में चला जाएगा ना, तो कैलेंडर भी हम डिस्कस करेंगे कि आज से फ्यूचर में कौन सा। ये देखिए, सी आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी टॉपिक। हाँ, बाय मिस्टेक अगर कोई टॉपिक मेरे से छूट रहा हो तो यू पीपल टेल मी कि सर ये टॉपिक छूट रहा है, अदरवाइज सब कुछ हम कवर करेंगे। उसमें आप फ्यूचर के कोई भी पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन है वो, या पास्ट के किसी भी डेट पर कौन सा दिन है, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। चलिए अभी यहां पर आए हम लोग, अगर वो 10 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से चल रहा है, सेम डिस्टेंस, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी वो सेम ही डिस्टेंस चल रहा है, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। सो यहाँ पर इसको टाइम कितना लगेगा 6 आवर, यहाँ पे इसको टाइम कितना लगेगा 5 आवर, क्योंकि भाई जब स्पीड तेज है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम तो कम लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस इन द टाइम क्या दे रहा है, मान लीजिए रिपोर्टिंग टाइम 9 है, ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम in order to remove any type of irregularities in calculating the difference in the time. So when he is traveling by 10 km per hour, he is 15 minutes late. It means that he is reaching at 10:45. When he increased his speed from 10 to 12, then he is late only by 5 minutes. It means that he is reaching at 8:55. So what is the difference in the time? 10 minutes. So it means that since all of these are in standard quantity, so our difference is 6 minus 5 is equal to 1. So 1 is equal to 10 minutes, or we can say that 10 by 60 hours, or 1 by 6. So our one is questions 1 by 6. So find the distance, our distance is 60, multiply it. So what will be the question's distance? 10 किलोमीटर। भाई ये सारे क्वेश्चन जाके, अच्छा कल, सॉरी आज तो आप लोग को मिला नहीं, कल जाके ये क्वेश्चन पैरेलली कर लीजिएगा इस मेथड से भी। देखिए ये क्या प्रिंट करके दिए हैं जिसके वजह से ये बोल रहे थे कि प्रिंट करना होगा, बताओ। मेरे को लगा ये वाटर मार्क लगाएंगे। हाँ हाँ, वो है ना इस तरह से एम्पावर लिखा होता, सो दैट अगर कोई उसका जिरोक्स करना चाहेगा ना तो ये फिर क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि वो एम्पावर भी आ जाएगा ना तो वो, हाँ है ना, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप लोग को इसमें पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, विजिबल रहता है ना आप लोग के लिए। चलिए तो ये है पीछे, ओके चलिए बढ़िया है। हाँ फ़ोन नंबर वंबर सब दिए हुए हैं। हाँ अरे नहीं नहीं यार, मैं चाहता भी नहीं हूँ, कारण क्या है कि हाँ मेरे लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। मैंने सर को मना भी किया है कि अभी तो जो कुछ वीडियोस हो गए और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।
खुद उनको अच्छा लगा है तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स आते हैं, अदरवाइज़ आप कितना भी अमाउंट एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दो वो बच्चे आएंगे चले जाएंगे। चलिए, तो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अभी देखिए कोई भी फॉर्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। सो चला जाए आगे, एक दो क्वेश्चन और बस आज के लिए वाइंड अप करेंगे फिर। See here, a man cover a certain distance on a scooter and if he travels 3 km faster he would have taken 40 minutes less, but if he decreases his speed by 2 km then he become 40 minutes late. Find the distance. Okay, so see here, a man cover a certain distance on a scooter and if he travels 3 km faster he would have taken 40 minutes less. Okay, if he decreases his speed by 2 km per hour then he becomes 40 minutes late. तो हम इसका मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर एंड इफ ही ट्रेवल्स 3 km per hour फास्टर, ओके ठीक है, he would have taken 40 minutes less time, okay, but if he decreases his speed, if he travel 3 km faster, हाँ क्या चीज़, हाँ नहीं देखिए टाइम का डिफरेंस तो हमारे पास आ गया ना, टाइम का डिफरेंस कितना आया है, इफ़ इट डिक्रीजेज स्पीड बाई 2 km देन ही बिकम 40 minutes लेट, और if he travel 30 km faster he would have taken 40 minutes less, but if he decreases then also 40 minutes late. अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, सो टोटल डिफरेंस हमारा कितना आ गया 80 मिनट का, समझ रहे हैं। सो अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर एंड इफ ही ट्रेवल्स 3 km फास्टर, ओके कोई इशू नहीं है, अगर 3 km फास्टर है। अब इसका मेरे को शॉर्टकट एक बार फॉर्मूले से निकालना होगा। तो अगर एक बार हम केस मान लेते हैं कि अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या माना जाए, यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड अगर हम मान लेते हैं सपोज करिए x, तो एक केस हमारा क्या हो जाता है x + 3 स्पीड, दूसरा केस हमारा क्या होगा x - 2 स्पीड, हाँ डिस्टेंस क्या आ गया हमारा, ओके एलसीएम, ठीक है। तो यहां पे हमारा टाइम क्या आ गया और यहां पे हमारा टाइम क्या आ गया, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, इसका मतलब 9 पे पहुंचना था, ये 40 मिनट लेस में ही पहुंच गया, मतलब 8:20 पे, ओके। बट इफ ही डिक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 km देन ही बिकम 40 मिनट लेट, इसका मतलब ये 9:40 पे पहुंच रहा है, इट मीन्स दैट 40 मिनट इधर 40 मिनट उधर, 80 मिनट। सो 80 मिनट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आवर बाय डिवाइडिंग इट बाय 60, ओके, यानी 8/6, और वी कैन से दैट 4/3। सो हियर x + 3 minus x + 2 is equal to 4/3। So our one is equal to questions 4/15. So find the distance. So here our one is equal to 4/15. So our x + 3 into x - 2 is equal to 4/15 x + 3 and x - 3, ये आ रहा है हमारा।
यार इसमें ना, हाँ इसमें देखिए, इसको इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। A man cover a certain distance on scooter and if he travel 3 किलोमीटर faster he would have taken 40 minute less। इसका मतलब अर्लियर वो x से चल रहा था, now he is traveling with speed x plus 3। ओके, पहले x से था, अब x plus 3 से था, एलसीएम कितना आ गया, तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे टाइम कितना निकला है, दिस इज द स्पीड, स्पीड दिस इज डिस्टेंस, सो यहाँ पे निकल गया x plus 3 और यहाँ पर कितना हो गया x। ओके, और जो टाइम का डिफरेंस है ना, पहले जितने स्पीड से चल रहा था उससे अब 40 मिनट लेस लग रहा है। ओके, सो x plus 3 माइनस x इज इक्वल टू 3। So our 3 is equal to questions 40/60 और सो पहले केस में हमारा 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन 2/9। ओके, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे पहले x से चल रहा था, अब x plus 3 से चल रहा है, डिस्टेंस कितना हो गया x इंटू एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे हो गया x plus 3 टाइम, उधर हो गया x, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 40 मिनट, क्वेश्चन में मेंशन है। सो 40 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया 40 डिवाइडेड बाई 60 आर में, सो दैट विल बी 2/3। सो 1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 मीन्स 2/9। एक तो ये केस हो गया। अच्छा, दूसरा केस क्या है, हमारा x है, दूसरे का कितना हो गया x - 2, कम से चल रहा है। सो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, सो अगेन x - 2 माइनस x इज इक्वल टू 40/60। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3। So here 1 is equal to 1/3 and there 1 is equal to 2/9. It means that ठीक है, हो गया। Here 1 is equal to 1/3 and there 1 is equal to 2/9. It means that but the distance is same. So here the distance will be, what will be the distance in this case? Our distance is x into x - 2. So what will be the question distance? Question distance will be x into x minus 2/3। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? नहीं आ रहा? आ गया? नहीं है? बताओ, क्लियर बताओ ना मेरे को, तो फिर मैं आगे बताऊँ। पल्लवी नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, अभी एक सेकंड हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। उधर क्या है आकाश, तुम्हें आ रहा है? इधर हमारा डिस्टेंस कितना है x इंटू एक्स प्लस 3 हमारा, और हमारा 1 2/9 है। सो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टू बाई 9। ये दोनों डिस्टेंस है तो सेम। सो
आंसर 40 आ रहा है, 40। ओके, चलिए हम इसको करते हैं। देखिए जो हमारा ट्री मेथड है, ट्री मेथड इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर सेम डिस्टेंस, जैसा कि हमने पढ़ा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे दो केस है। सबसे पहला क्या है कि जो मैन है थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ये, लेकिन हो जाएगा, उसमें आपको कोई फॉर्मूला मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा फिर आज का, टाइम हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैन अपनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन अगर वो उससे अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर, ही इज़ गोइंग टू इंक्रीज हिज स्पीड बाय 3 किलोमीटर, देन ही इज़ टेकिंग 40 मिनट लेस टाइम। ओके, सो हम मान लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है, एक्स। सी हियर, speed x, now he is increasing his speed by 3 kilometer according to the question, so new speed will become x plus 3. okay, distance is same। देखिए यहाँ पे 4 बार डिस्टेंस हम ले रहे हैं, एक बार तो ओरिजिनल x से चल रहा है, एक बार x plus 3 से चल रहा है, दूसरे केस में फिर x से चल रहा है और x minus 2 से चल रहा है, ठीक है। तो हम कर लेंगे पहले ये, he is moving with speed x, now he has increased his speed by 3 kilometer per hour, so what will be the distance here, LCM। okay, so what will be the speed in this case, what will be the speed in this case, x। now he is, when he increased the speed by 3, then the time is decreased by 40 minutes, so see here, x plus 3 minus x is equal to 40 minutes। वन इज 2 by 9, 3 will get in denominator, ठीक है। so if 1 is 2 by 9, so our distance will be, this will be our distance in this case। पल्लवी आ रहा है समझ में, डन, ये डिस्टेंस हुआ आकाश। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, वो पहले स्पीड x से चल रहा था, अब किस स्पीड से चल रहा है, x minus 2 से, तो इसका क्या हो गया डिस्टेंस, ओके। स्पीड क्या हो गया, स्पीड x है, x स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम, सेम हियर। अब उसने स्पीड स्लो कर दिया है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगेन कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, 40 मिनट। so x minus 2, we can convert it into hour, okay। अरे ये 2 2 कट जाता ना, 1/3, सो 1 इज इक्वल टू 1/3। सो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना है, x माइनस x इंटू एक्स माइनस 2, सो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, x इंटू एक्स माइनस 2/3, ओके, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, because the distance which is traveled मतलब the distance which is traveled by that man is same, so this is equal to this, so what is this here, ओके, ठीक है। 3, now send this 3 in cross multiplication, cancel this x by this x, okay, multiply by 2, 2x plus 6 is equal to this 3 will go this side, so here will be 3x minus 6, okay। now take this 2x that side and bring
this 6 from this side. So here -6, when he -6 will come this side, it will become +6. So 6 plus 6, 12, and here plus 2x. When it will go that side, it will become -2x. So 3x minus 2x is equal to x. That is 12. So either now put this value of x in any of the question, either here or there. So I think that will be easy for us. यहाँ थोड़ा 2/9 है, वहाँ सिर्फ 3 है. So put the value of x. So what we will get? 12 into 12 minus 2, 10 upon 3. 3 4 जा और 40 किलोमीटर. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पल्लवी? क्या चीज? हाँ यार एक बार की तरह, क्योंकि आप देखिए ना दोनों बार में केस क्या इन्वॉल्व है. एक बार में केस क्या बोल रहा है कि जो नॉर्मल स्पीड है उससे 40 मतलब उससे 3 किलोमीटर तेज वो जा रहा है. मतलब एक बार जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, इन फर्स्ट केस देयर आर 2 स्पीड, द नॉर्मल स्पीड एंड नॉर्मल स्पीड प्लस 3. A man cover a certain distance on a scooter, and if he travel 3 kilometer faster, it means that in first case it is x, now in the second case it is x plus 3. This all comes under one heading. Now the next part of the question start here. But if he decreases his speed by 2, it means that earlier also he is moving x, now he is moving with x minus 2. So अब दो केस क्वेश्चन के ही हैं तो हमें करना पड़ेगा. देखिए यहां पर भी तो दो केस ही हमने किया है. ये जो केस है ये जो एक केस है, इस केस का एक ट्री डायग्राम बनेगा जो हम लोग अभी तक बनाते आ रहे थे. फिर ये दूसरा केस है, ये दूसरे केस का भी एक ट्री डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये दोनों जगह फॉर्मूला यूज हो रहा है ना. क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि ट्री डायग्राम की वजह से. और हमने क्या किया अपनी इक्वेशन में, दोनों डिस्टेंस जो आया उसको हमने इक्वेट कर दिया. यहाँ पर भी दे आर डूइंग द सेम थिंग. फर्स्ट दे विल कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम हियर, देन अगेन फ्रॉम हियर, देन दे विल इक्वेट द डिस्टेंस. जो हमने किया सेम वही इन लोगों ने भी किया है. मतलब ये भी मैंने ही किया है, मतलब इस तरीके से. देखिए तो ये क्वेश्चन है ही लेंदी, क्या करें. यहाँ पे भी पहला केस ये लगाया जिसका हमने पहला ट्री बनाया, दूसरा केस इन्होंने ये लगाया. वी हैव ऑल्सो मेड द सेकेंड ट्री फॉर दिस. देयर आफ्टर दे इक्वेटेड बोथ द डिस्टेंस. तो यहाँ पर भी आया, सी हियर, आफ्टर इक्वेट किए फिर ये वैल्यू आई. सेम हमने भी किया है. अब क्वेश्चन ही लेंदी है थोड़ा सा कि दो ट्री की जरूरत पड़ रही है. हाँ सब आएगा भाई. व्हेन ट्रेन इज क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म, व्हेन ट्रेन इज क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, व्हेन ट्रेन इज क्रॉसिंग अ मैन, व्हेन ट्रेन इज क्रॉसिंग, हो ही गया. प्लेटफॉर्म, पोल, ट्रेन, मैन, सब आएगा. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, लिटरली आई एम टेलिंग यू पीपल दैट. मेरे को बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ा था, तब जाके मतलब मैं सारे वैरायटी के क्वेश्चन को फिल्टर कर पाया हूँ. उसके लिए पहले मेरे को सारे क्वेश्चन लगाने पड़ रहे थे और फिर ये देखिए कि यूपीएससी के लायक कौन सा इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई यूपीएससी के लायक नहीं इंपॉर्टेंट है फिर भी उसको कंसिडर करना था कि अभी तक नहीं पूछा है, क्या पता बाद में पूछ ले. सो जितने भी वेरिएशन मिले हैं मैंने उन सभी को कैटर किया है विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला. ठीक है. So now we are done with today's lecture. Now we are going to meet again on next day. अच्छा वो हाँ मैंने भी पूछा था, राखी उखी की छुट्टी आप लोग को नहीं चाहिए ना. हाँ अपना क्लास अपने रूटीन पर चलेगा. ओके. सो देयर विल बी नो एनी हॉलीडे फॉर रक्षाबंधन. ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स. नाउ अच्छा ये बंद करके जा चुके हैं क्या? नहीं. ओके इट इज़ over for today's. Now we are going to meet tomorrow. Thank you. Best of luck for your studies. अभी यहाँ से जाते नींद खत्म हो जाएगी.